I am Meena Derasri. Today we shall read 10th class poem The Lotus. Let's get started. Love came to Flora, asking for a flower. That would of flower be undisputed queen. The lily and the rose long had been rivals for that high honor, bards of power. Had sung their claims, the rose can never tower like the pale lily with her Junomi. But is the lily lovelier? Thus, between flower factions rang the strife in Psyche's bower. Give me a flower delicious as the rose and stately as the lily in her pride. But of what color? Rose red, love first chose. Then prayed no, lily white, or both provide. And Flora gave the lotus, rose red dyed, and lily white, the queenliest flower that blows. टोरू दत्त इसकी राइटर है, पोइट्रेस है. अबाउट द पोइट, March 4, 1856 born and August 30, 1877 died. Toru Dutt is a well-known poet of India, whose contribution in Indian writing in English is memorable. Her father was a rich man of Calcutta. Her mother had a deep knowledge of the Hindu myths. This family was impressed by the glitter of the West and embraced Christianity. But Toru Dutt had a deep attraction for the Indian epics and mythology. She read the Ramayana, the Mahabharata, the Vishnu Puran, and the Bhagavad. Her imagination was shaped by these Indian classics. Her literature abounds in the cultural heritage of India. About the poem, The Lotus is a small poem called sonnet. It is a Petrarchan sonnet. The lotus has been a favorite flower with Indian gods and goddesses. Both Lord Vishnu and Goddess Lakshmi love this flower. In present times, many prizes have been named after the lotus. The Padma Shri, Padma Bhushan, the Padma Vibhushan, etc. For Toru Dutt, the lotus is the most perfect flower regarding the combination of colors and appearance. The poet describes a dispute among flowers in the manner of a beauty contest. The rose and the lily. The rose and the lily are rivals to get the status of the best flower. But Flora, the goddess of flower, chooses the lotus as a flower of supreme beauty because this flower retains in it the whiteness of the lily and the redness of the rose. So neither the lily nor the rose can equal the beauty of the lotus. Symbolically, the victory of the lotus is the victory of Indian culture over the Western world, since the lily and the rose are the Western flowers. अब स्टार्ट से पहले अपन फोकस करते हैं सोनेट पर. अबाउट द पोइम जो है ये कविता है, इसको सोनेट बोलते हैं. सोनेट के बारे में पता होगा, सोनेट क्या होता है. सोनेट जो है, जैसे अपने हिंदी में कविताएं होती है, वैसे इंग्लिश साहित्य के अंदर एक 14 लाइन की जो कविता होती है, 8 और 6 का पद होता है, जिसका एक स्ट्रक्चर होता है जैसे ABBA और CDE. और पेट्रार्कन का मतलब होता है, एक पेट्रार्क नाम का इटली का एक जो कवि हुआ था, उसने
ये स्टार्ट किया था, उसके बाद से इस प्रकार की जो कविता बनने लगी उसको पेट्रार्कन कविताएं बोलते हैं। और जो 14 लाइन की कविता होती है उसको सोनेट बोलते हैं। इंग्लिश साहित्य में 2 प्रकार की सोनेट होती है, एक पेट्रार्कन होती है और दूसरी होती है शेक्सपियरियन, जो शेक्सपियर के द्वारा बनाई गई, उसके बाद उसके तरीके से जिसने भी रचना की है वो शेक्सपियरियन कहलाती है। तो 2 तरीके से जो कविताओं की रचना की गई है वो होती है सोनेट। अब ये जो पूरी कविता है ये पेट्रार्कन सोनेट है। इस सोनेट को अपन पहले देख लेते हैं एक बार वापस। 5 पद है ना पेट्रार्कन में, जैसे लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर, इसमें 14 ही लाइनों में हर एक में 5-5 पद है, इसलिए ये पंचपदी है। और यहाँ एक पहले स्टेंजे में जैसे दिखाया गया अलग अलग कलर करके, ताकि 5 पद समझ में आवे। ये पूरी कविता में ऐसे 5 पद होंगे। इसमें कवि जो है क्या कहना चाह रहा है अपन देख लेते हैं। लव केम टू फ्लोरा, यहाँ पर लव कौन है, फ्लोरा कौन है, ठीक है। फ्लोरा फूलों की देवी है, वनस्पति की देवी है, और लव प्रेम का देवता है। तो लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर, लव ने फ्लोरा से एक फूल मांगा। दैट वुड ऑफ फ्लावर बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, वो फूल ऐसा होना चाहिए जिस पर कोई विवाद नहीं हो, डिस्प्यूट नहीं हो, अनडिस्प्यूटेड हो। फूलों का जिसको अपन रानी का ताज दे सकते हैं कि जो सबसे सुंदर हो, जिसकी सुंदरता पर कोई विवाद ना हो, ऐसा। द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर बार्ड्स ऑफ पावर। लिली और रोज जो फूल हैं वो लंबे समय से क्या रहे हैं, हैड बीन रहे हैं, राइवल रहे हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं, यानी कि इन दोनों में बड़ा कड़ा मुकाबला रहा है। फॉर दैट हाई ऑनर, उस सम्मान के लिए, कौन सा सम्मान, कि फूलों की रानी का ताज, सबसे सुंदर फूल का ताज जो है किसको दिया जाए, लिली को या रोज को। बार्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम्स, जो कवि हैं, बार्ड्स का मतलब होता है कवि, भाट, जो किसी की तारीफ में कविताएं लिखते हैं, स्तुति में, उनको भाट भी बोलते हैं, कवि भी बोलते हैं। तो बार्ड्स ऑफ पावर हैड संग, उन्होंने गाए हैं, देयर क्लेम्स, उन्होंने अपने अपने दावे रखे हैं। दी रोज कैन नेवर टावर, रोज कैन नेवर टावर, रोज कभी पहुंच ही नहीं सकता उस टावर तक, उस ऊंचाई तक। लाइक द पेल लिली विद हर जुनोमीन, पेल लिली, यहाँ पेल से मतलब है फीका, फीका पड़ जाना। लिली यानी जो फूल है वो सफ़ेद होता है, तो सफ़ेद रंग को एक तरह से फीका मानते हुए, जहाँ गुलाब की तुलना में, तो वो कवियों में भी 2 गुट हो गए हैं कि लिली वाले और रोज वाले। तो रोज वाले और लिली वाले कवियों में जो ये विवाद चल रहे हैं कि अपने अपने पक्ष रख रहे हैं कि रोज जो है कभी भी लिली की तुलना नहीं कर सकता है, क्योंकि लिली में क्या है, जूनो मीन है, जूनो जैसे हाव भाव है। जूनो कौन होता है, जूनो अपने भारतीय संस्कृति के अंदर जूनो जो है जुपिटर की पत्नी, यानी कि जो बृहस्पति है उसकी पत्नी जूनो का नाम दिया गया है। और उनके समान जो हाव भाव वाली, मतलब गरिमा, उच्च, जो उनको कह सकते हैं अपन, वैसी महिमा है, मर्यादा, प्रतिष्ठा है। तो लिली का फूल जो उस प्रतिष्ठा तक पहुंचा हुआ है, उसके मुकाबले में ये गुलाब उसकी तुलना नहीं कर सकता। बट इज़ द लिली लवलियर, लेकिन सवाल दूसरी तरफ से भी है कि क्या लिली उससे ज़्यादा सुंदर है, लवलियर है। 10 इस प्रकार से बिटवीन फ्लावर फैक्शंस, फूलों के भी गुट, दल, रैंग द स्ट्राइफ, उनमें स्ट्राइफ हो गई, विवाद छिड़ गया, संघर्ष हो गया, 2 गुट बन गए फूलों के। कहाँ हुए ये, साइकेज बावर, साइके की बावर में, साइके के कुंज में। साइक यानी यहाँ पर एक मान लो आप, जिसे जहाँ कवियों का एक समूह है कि उसकी कुंज में, बावर यानी कुंज होता है जहाँ फूलों के बीच में संघर्ष, इमेजिनेशन टाइप है कि आप इमेज करो कि फूलों में संघर्ष हो रहा है, जैसे इंसानों में होता है, मानवीकरण किया गया है इसमें। गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज, मेरे को ऐसा फूल दीजिए जो रोज जैसा डिलीशियस हो। यहाँ पर डिलीशियस से मतलब है प्रतिष्ठित, उसके जैसा प्यारा, रोचक, मतलब मन को छूने वाला, ऐसे। एंड स्टेडली एज द लिली, और जो स्टेडली का मतलब है जिसकी जिसको अपन कहते हैं ना महानता, एकदम लिली के जैसी हो, इन हर प्राइड, उसकी
जिस पर अपन गर्व कर सकें, बट ऑफ व्हाट कलर? रोज रेड लव फर्स्ट चोज। पर कौन से कलर का फूल लेना है? व्हाट कलर? रोज रेड, रोज जैसा लाल, लव फर्स्ट चोज, पहले लव ने कहा, देन प्रेड, लेकिन तभी उसने प्रार्थना की, नो नहीं, लिली वाइट, लिली जैसा सफ़ेद चाहिए, और या बोथ प्रोवाइड, दोनों ही दे दो। यानी कि अभी लोग को ये समझ में नहीं आ रहा कि फूल कौन सा लें, रोज जैसा रेड कलर का फूल लें या लिली जैसा वाइट फूल लें, या फिर दोनों फूल ले चलें। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, तब फ्लोरा ने, फूलों की देवी, वनस्पति की देवी, फूलों की जो देवी फ्लोरा कहलाती है, उसने क्या दिया? लोटस दिया। रोज रेड डाइड, जो कैसा है? रोज के जैसा लाल, डाइड यानी रंग का रंगा हुआ, और लिली वाइट, लिली जैसा सफ़ेद, यानी कि दोनों से मिला जुला जो है, जिसमें सफ़ेद भी है और लाल जैसा भी है, वो है क्वीनलीएस्ट, फूलों की रानी वाला फ्लावर दैट ब्लोज, जो खिलता है। और वो फूल कौन सा दिया? लोटस। तो इस प्रकार इस कविता से मुझे समझ में आ रहा है कि कमल का फूल यहाँ पर जो कॉन्टेस्ट होती है उसमें जीत जाता है, और क्वीनलीएस्ट फ्लावर कौन चुना जाता है? लोटस चुना जाता है। अब थोड़ा सा अपन ट्रांसलेट कर लेते हैं कि टोरूदत्त इज ए वेल नोन पोइट ऑफ इंडिया। टोरूदत्त कौन है? भारत की एक प्रसिद्ध कवयित्री है। हुज कंट्रीब्यूशन इन इंडियन राइटिंग, जिसका भारतीय लेखनी में योगदान है, इन इंग्लिश इज़ मेमोरेबल, और वो इंग्लिश में, इंग्लिश साहित्य में भी जो मेमोरेबल है, याद रखने योग्य है। हर फादर वॉज ए रिच मैन ऑफ कलकत्ता, उसके पिताजी कलकत्ता के सबसे अमीर व्यक्ति थे। हर मदर हैड ए डीप नॉलेज ऑफ द हिंदू माइथ्स, और उनकी माँ को हिंदू माइथ्स का गहरा नॉलेज था। दिस फैमिली वॉज इम्प्रेस्ड बाय द ग्लिटर, लेकिन ये जो परिवार है वो बड़ा ही इम्प्रेस हुआ था ग्लिटर से, चमक दमक से, वो भी किसकी? वेस्ट से, पश्चिमी सभ्यता संस्कृति से। एंड हैड इम्प्रेस्ड, और अपना लिया था क्रिश्चियनिटी, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था। बट टोरूदत्त हैड ए डीप अट्रैक्शन, लेकिन टोरूदत्त को बहुत ही गहरा लगाव था फॉर द इंडियन एपिक्स, भारतीय एपिक्स का मतलब था महाकाव्य, एंड माइथोलॉजी, पौराणिक जो ग्रंथ है हमारे। शी रीड्स द रामायण, उसने क्या पढ़ा? वो रामायण पढ़ी। सी और क्या पढ़ा? दी महाभारत, विष्णु पुराण, एंड द भगवत, यानी कि भगवत गीता। तो टोरूदत्त ने अपनी भारतीय संस्कृति में बहुत ज़्यादा लगाव होने से, पौराणिक साहित्य में लगाव होने से, रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, भगवत गीता, ये सब पढ़े। हर इमेजिनेशन वॉज शेप्ड बाय दीज इंडियन क्लासिक्स, और उसकी जो अपनी कवयित्री टोरूदत्त है, उनकी जो कल्पना है, इमेजिनेशन, वो किससे बनी? भारतीय साहित्य से ओतप्रोत हो गए। हर लिटरेचर अबाउंड्स इन द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, और उनका जो साहित्य है वो अबाउंड से मतलब छलकता है सांस्कृतिक विरासत के रूप में, वो भारत की, यानी कि उसके साहित्य में भारत की सांस्कृतिक विरासत छलकती है। इस कविता में वैसे मैंने ट्रांसलेट कर दिया, फिर भी एक बार और पढ़ लेते हैं। द लोटस इज ए स्मॉल पोइम, छोटी सी कविता जिसको अपन सोनेट बोलते हैं। इट इज़ ए पेट्रार्कन सोनेट, पेट्रार्क कवि के द्वारा लिखी गई है, इसलिए सभी अब इस टाइप की कविताओं को पेट्रार्कन बोलते हैं। चतुष्पदी कविताओं को सोनेट बोलते हैं, जिसमें 14 लाइनें होती है, 8-6 वाली। और द लोटस हैज़ बीन ए फेवरेट फ्लावर, कमल जो है, लोटस जो है, हैड बीन रहा था फेवरेट फ्लावर, सबसे लोकप्रिय फ्लावर, विद इंडियन गॉड्स, जो भारतीय ईश्वर, देवी देवता है, गॉड गॉडेज, बोथ लॉर्ड विष्णु एंड गॉडेज लक्ष्मी, दोनों के ही, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी, लव, जो इनको पसंद करते हैं, दिस फ्लावर को। इन प्रेजेंट टाइम्स, वर्तमान समय में भी, मैनी प्राइजेज हैव बीन नेम्ड, बहुत सारे पुरस्कारों के नाम रखे गए हैं आफ्टर द लोटस, लोटस से ही, दी पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण इत्यादि। फॉर टोरूदत्त द लोटस इज़ द मोस्ट परफेक्ट फ्लावर, टोरूदत्त के दृष्टि से कमल जो है सबसे ज़्यादा परफेक्ट यानी फ्लावर है, पूर्ण फूल है। रिगार्डिंग द कॉम्बिनेशन, जिसमें कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, कलर्स, रंगों का, एंड अपीयरेंस, दिखने में भी। द पोइट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करती है, ए डिस्प्यूट अमंग फ्लावर्स, एक फूलों के बीच में डिस्प्यूट यानी विवाद, इन द मैनर ऑफ ए ब्यूटी कॉन्टेस्ट, जो इस तरीके से जैसे सुंदरता की प्रतियोगिता में होता है। द रोज एंड लिली आर राइवल, जिसमें गुलाब और लिली को राइवल दिखाया गया है।
गेट द स्टेटस ऑफ बेस्ट फ्लावर, जो ये बेस्ट फ्लावर का स्टेटस प्राप्त करने के लिए प्रतिद्वंदी बनते हैं। बट फ्लोरा द गॉडेस ऑफ फ्लावर्स चूजेज, लेकिन जो फूलों की देवी है वो किसको चुन लेती है, वो लोटस को चुनती है एज ए फ्लावर ऑफ सुप्रीम ब्यूटी, सबसे सर्वोच्च सुंदरता के रूप में किसको मिलता है ये पुरस्कार, कमल को मिलता है। बिकॉज दिस फ्लावर रिटेन्स, क्योंकि इस फूल में क्या होता है, इन इट, इसमें अपने आप में होता है वाइटनेस ऑफ द लिली, लिली जैसी सफ़ेदी, और रेडनेस ऑफ द रोज, गुलाब जैसी लालिमा। सो नाइदर द लिली नॉर द रोज, न तो लिली और न ही गुलाब जो है कैन इक्वल द ब्यूटी, इसकी सुंदरता के समान हो सकता है ऑफ द लोटस, कमल की सुंदरता के समान दोनों नहीं हो सकते हैं। सिम्बोलिकली एक प्रतीकात्मक रूप से द विक्ट्री ऑफ द लोटस, यहाँ पर जो विक्ट्री होती है, विजय होती है कमल की, इज़ द विक्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, एक तरह से भारतीय संस्कृति की जीत है ओवर वेस्टर्न वर्ल्ड, पश्चिमी सभ्यता के ऊपर। सिंस क्योंकि लिली एंड द रोज आर वेस्टर्न फ्लावर, क्योंकि ये दोनों ही फूल है विदेशी फूल है, पश्चिमी सभ्यता के हैं, और कमल हमारा भारतीय फूल है। थैंक यू।